Hello? Hello? सुनाई दे रहा है? हाँ? Yes, sir. Yes, sir. So, I'll go through this. Can you see the screen? हाँ? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. एक मिनट अच्छा। शेयर कर. Now, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so I think, have you gone through this chemistry syllabus? Have you seen the chemistry syllabus? Yes, sir. Yes or no? बताओ क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज है? बोलो, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना सर है? केमिकल बॉन्डिंग है और वाटर है, पॉलीमर है और कोरोजन है। एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है। कल lubricant, lubricants, phase rule, green chemistry, fuel chemistry भी है ना? तो these are the different contents of chemistry. Okay? So from those contents, I generally take this polymer chemistry. Okay. So polymer chemistry, this is a subject, polymer subject contents, which cover both. That will cover your text. Text means some questions related answering and numericals, both. Okay. So generally, if your concept is clear, then it becomes easy to solve the numericals. And if you solve the numerical, it assumes that your concept, vice versa. Okay. So in polymer parts, generally we cover, okay, say first lectures plan. Generally we cover the introductory part. Introductory part, that is what is polymer, what is monomer, what are the classifications of polymer, what are the different types of polymers, why polymers comes under the youngest members of this materials family, what is macromolecule, why all macromolecules are not polymers. Polymers are macromolecules, but it's not necessary that all macromolecules are polymers. Okay, polymer shows the average property, so we get the different types of the property. Those are being denoted as their average. Say for example, molecular weight, so we write the average molecular weight, and this molecular weight is also of different types. Say number average molecular weight, weight average molecular weight, viscosity average molecular weight, sediment average. So that's why polymer comes under the very unique materials. Okay. So most of the cases that has been found earlier days, what are the different types of these other materials, say metal, ceramics, wood, composites are being used nowadays. Though most of the cases those are being replaced by this polymer.
So in this way, we will cover this introductory part. Then we will come to this general property of this polymer. They are generally we consider the different types of this molecular weight, let's say Mn bar, Mw bar, Mv bar, Mz bar. Okay. Then dispersity, the degree of polymerization, functionality, okay. Then they are in molecular weight, the dispersity index, okay, dispersity index, functionality, extent of polymerization, okay, and then we try to make some correlations of these properties. So then we come to this the other way. We come to this the Carothers equation. So elaborately we discuss about it, okay, in Carothers equations. Then what are the different relations of this molecular weight? Say the molecular weight, degree of polymerizations, okay, the molecular weight of repeating unit, okay, in different forms it is described the numerical forms of this. Then we come to this the types of this polymerization reactions. Say the chain two types now, chain and condensation polymerization, and they are also specifically we mentioned for chain polymerizations. Okay, what types are there? They are the different types of these polymers are present, different types of these monomers present here, monomers and polymers, okay, and some relations in this chain polymerization reaction. Similar way, condensation polymerization reactions also there we describe some of these relations in these terms of this condensation polymerization reactions. Then examples of this condensation polymerization reactions, different types of these monomers during these condensation polymerization reactions, etc. Okay. Then we come, after this we come to this the in all cases chain and industrial importance also. Then we come to this structure property relationships. Okay. Then biodegradability of the biopolymers, okay, and societal use of different types of polymers. Okay. So in this way we make the conclusions of this polymer. So here once we are studying in these polymer chapters, different during these lectures, okay, there also we will discuss the different types of these numericals. Also we will discuss different types of these questions, possible questions, okay, and their solutions. Everything we will discuss in the lecture classes itself. Now beside this, that you know, you are also having the tutorial class, okay. So each section is having the two groups, is it? Say group, say if it is A group, then A1 and A2, okay, group 2, and their tutorial classes are there. So there also what have been described in these classes, those are discussed by teachers, tutorial teachers, and
Most of the cases numericals are there. हाँ बोलो. Yes. कुछ बोल रहे हो? हेलो. बताओ कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ भाई. अदरवाइज मैं तो ऐसे बक बक करते जाऊंगा. हाँ बताओ. हाँ साफ साफ लिखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा. क्यों तुमको दिखाई नहीं दे रहा ठीक से? हमारा तो व्हाइट बोर्ड में तो सही दिखाई दे रहा है. ये क्या लिखा है? ट्यूटोरियल क्लास ग्रुप 1 ग्रुप 2. तो यहाँ पे लिखा है न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे लिखे क्वेश्चन, यहाँ पे लिखे स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप, बायोपॉलीमर, सोसाइटल यूज ऑफ पॉलीमर्स. मैं तो लिख भी रहा बोल भी रहा है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? तो सर, समझ आ रही है. सर, हैं? हाँ, voice is not clearly audible, sir. वॉइस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? तुम लोग कुछ माइक टाइक ऑन रखो तो नॉइज होंगे. एक मिनट दादा, मैं थोड़ा सा पंखा बंद करूँ देखिए यदि तुम्हारा कुछ फायदा हो. अभी वॉइस ठीक आ रहा है? जी सर. Yes sir, voice is clear. Yes, sir. हाँ, मेरा ख्याल से वो पंखा चल रहा था इसीलिए हो सकता. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो. तो ये वाला तुम बोलो, इसका बोर्ड राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है? मेरा ख्याल से बड़ा बड़ा इसी में है, कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए. ना जब डिस्प्ले होते छोटा हो जाते क्या? तो ये ठीक है. तो ट्यूटोरियल क्लासेस आल्सो दोज आर टू बी डिस्कस, है ना. बट इन ट्यूटोरियल क्लास दैट यू नो देयर विल बी द क्विज. है ये क्विज टेस्ट होंगे. ये टीचर्स एज पर his or her wishes will take, but generally you know during this semester minimum 4 quiz तो होना ही है. ठीक है, 4 मतलब 4 किंबा 5 जैसे भी हो, तो इसमें that will carry 20 marks. ठीक, ये आपके सब्स्टिट्यूट ऑफ मिड सेम का है. ठीक है, ये 20 हो गया है. और बाकी 20 टीचर्स असेसमेंट हो गया. ठीक, ये 20 हो गया. एंड रेस 60 एंड सेम एग्जाम का है. एंड सेम एग्जाम उसी समय डिसाइड होंगे जो उसका कॉम्बिनेशन क्या होंगे, है ना. अभी ये मान के चलो 60 है. ठीक, तो on that basis also we will proceed. That's why whatever will be discussed in the particularly in lecture class, you should be very attentive and you should note down his also. You don't wait for your video recordings. Video recordings you may get some problems, some noise, etc. or you may say this are handwriting tick legible नहीं है, ये हो सकते है ना वीडियो रिकॉर्डिंग में. बट सिंस वंस it is visual as well as it is hearable, तो it will be easy. ठीक है, and it will directly go to your mind. इसीलिए that way you should proceed. ठीक है. Now the terms of these books, ये बुक्स किस प्रकार आपको देखना है. देखो different types of books are there.
जैन एंड जैन, ठीक है। देन शशि चावला का भी बुक है। देन और एक बुक है, बुक तो बहुत है, आदाब एंड कुछ एक नाम है, और एक है हरीश चावला का भी, हरीश चोपड़ा शायद। ठीक है। बिसाइड दिस अदर्स बुक्स आर आल्सो देयर, कोई सा भी बुक्स आप देखिए, बट इन मेन फोकस यू शुड हैव द लेक्चर्स। क्यों ना, ऐसा जरूरी नहीं है आपको टेक्स्ट बुक में सब कुछ मिले, ठीक है। जो पढ़ाया जाएंगे हो सकता बहुत कुछ चीज नहीं भी मिल रहा है, ठीक है। नहीं मिलना है मतलब मिलेगा तो जरूर, मतलब ऐसा जरूरी ऐसा तो नहीं है मैं हमारा मन से मैं खुद आविष्कार करके पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज देयर इन द टेक्स्ट, बट इन योर लिमिटेड टेक्स्ट बुक यू मे नॉट गेट इट, ओके। तो इसी में थोड़ा से ये वाला ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी बताओ, सॉरी। As per the last time experience, particularly during these online classes, whatever quiz, assignments, etc. are being given to you, generally you are copying, even in the end semester exam. Okay? So that's why result is coming what? कोई ले आए, नारियल भी ले आओ। ठीक है। तो मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, लास्ट ईयर तुम्हारा साथी लोगों का कृति का एक नमूना देखो। जैसे इन पॉलीमर चैप्टर से मेरा ख्याल से इट वाज 7 और 8 मार्क्स, 7 और 8 मार्क्स था, ठीक है। कंप्लीटली न्यूमेरिकल, मतलब वो concept based numerical was given. So it was being found out of this 500 students, only 5 students answer was correct. Only 5 students. Now you will say, sir, ये कैसे हो गया? Yes, ऐसा ही हुआ। क्या ना, a students who has solved it and rest of the 495 student has copied it. ठीक है, same in ditto. ठीक है, since from the beginning answer was wrong, है ना, तो end was also wrong. 495 students answer was wrong. Only 5, I think 5 or 6 students answer was correct, because he has not copied, he or she has not copied. And rest all students, that's mean कितने students हो गया? 99.9% ही मानो, मतलब सारे 100% स्टूडेंट ने कॉपी कर दिए। ठीक है, that was the bitter experience. हेलो, हेलो,
क्या आवाज आ रहा है? सौरभ तेरा कैमरा ऑन है। सौरभ कैमरा ऑन कर ले। जो नॉइज हो रहा, कोई बात भी कर रहे हैं। क्लास चल रही है ऑनलाइन। ये देखो आधार भी बात कर रहा है, कोई बच्चे का आवाज आ रहा। सौरभ क्या? तुम लोग को पता लगता है किसने कैमरा ऑन करते हैं? हाँ सौरभ किया। सौरभ का छोटा भाई कैमरा ऑफ कर दो उसका और माइक भी ऑफ कर दो। हैं? सौरभ वहाँ पर नहीं है और कैमरा ऑन है। अच्छा, ये देखो उसका भैया शायद आवाज कर रहा, छोटा भैया। हाँ कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन। ये देखो, बोलो ऑफ कर दे। किए? कर दिया। तो और बताओ। तो इसीलिए दैट्स व्हाई यू सी ना, यू शुड अप्लाई योर ओन माइंड ना। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करके लिख लेते हो, लेकिन पहले तो ये तो देखो इसका जो लिख रहे हो व जो आंसर दे रहे हो, जो सॉल्व कर रहे हो न्यूमेरिकल, वो सही है कि नहीं। दैट वाज कंसेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल था ना, though it was conceptual, but in the question itself it was clear. Question itself the answer was given, है ना। That's why the students, those have understood the subject or listened the subject, है ना, attentively, they have only been able. 495 स्टूडेंट्स का आंसर गलत था। आंसर गलत का मतलब भी अच्छा पता है आप लोगों का? आंसर गलत होने का मतलब क्या होना, टीचर्स के लिए बहुत आसान हो जाते हैं। वो देखते वक्त काट के जीरो पर बैठा देते हैं, तो उसको क्या करना। और यदि आप आंसर सही करोगे ना, उसको तो हर एक स्टेप देखना पड़ेगा ना। और शुरू में देख के उसको पता लग जाते हैं ये कॉपीड है और दैट इज ए रॉन्ग आंसर। तो इसलिए आगे आप देखने की कोई जरूरत ही नहीं। शुरू में कोई से भी न्यूमेरिकल शुरू में गलती किए हो तो एंड में रिजल्ट क्या आएंगे, गलत ही आएंगे, है ना। तो इसीलिए यू शुड अप्लाई योर ओन माइंड, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, चोरी विद्या है सबसे बड़ा विद्या है, समझे हैं। लेकिन बड़ा विद्या कब होंगे, यदि न पकड़ में आए, तभी वो सबसे बड़ा विद्या। इसीलिए कहते हैं चोरी विद्या बड़ा विद्या, यदि न पकड़ में आए। पकड़ में आ जाए तो आपके चोरी का विद्या रिजल्ट क्या है, नहीं। और ये ऑनलाइन सिस्टम में सब लोग चोरी करते हैं, सब A to Z। And that's why we are analyzing the students through their viva only, ठीक है। तो इसीलिए हमारे हाथ में एक ही वेपन है जिसी से हम लोग स्टूडेंट्स को कैटेगराइज कर रहा है, दैट इज योर वाइवा वोसी एग्जाम। इसी से पता लग जाते हैं स्टूडेंट कितना लिसन किए हैं, कितना उसको समझ में आए हैं। इवन इन प्रैक्टिकल क्लास, सी the student has not attended the practicals lectures, virtual classes, but in his or her answers 100% correct. Once in viva voce he or she self is saying जिस ने में ये प्रैक्टिकल किया नहीं है, ये वर्चुअल क्लास में अटेंड किया नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट के में नाम ही नहीं सुने हैं, लेकिन आंसर वाज 100% करेक्ट। तो बताओ आप
क्या संदेश जाएंगे आपके पास? तो इसीलिए थोड़ा बहुत सीरियस हो, है ना? ठीक है, ছেলেটা কত করে নিল? और ये बताओ, if you have any queries, any doubt, any asking, अदरवाइज मानो आज का इंट्रोडक्टरी क्लास तो हो गया, तुम्हारा रिटर्न एग्जाम नहीं होएगा? ये तो परिस्थिति के आधार पर होंगे बेटा। अभी इसीलिए मैंने एंड सेमेस्टर एग्जाम में क्या बोले थे, 60 अभी फिलहाल है, लेकिन उसको जो वेरिएशन क्या है दैट वी ऑल्सो डोंट नो। परिस्थिति यदि ठीक हो सकता है रिटन एग्जाम आप लोगों को बुलाएंगे, रिटन एग्जाम होंगे, मतलब ऑफलाइन जैसे एग्जाम होते हैं फिजिकली। लेकिन सर, हाँ बोलो सर आप हमें केमिस्ट्री के नोट्स शेयर करेंगे क्या? नोट्स शेयर? जी सर। तो नोट्स तो तुम्हारे पास तो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे बेटा। हाँ सर। जब मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे, इसके बाद तो तुम्हारे पास तो वो मैटर तो सारे रिकॉर्डिंग तो चली जाएंगे। बट सर मतलब पढ़ने के लिए फिर रिकॉर्डिंग देखना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। क्यों? मतलब सर अगर आपने नोट्स मतलब आपने अगर पिछली सेशन में अगर नोट्स शेयर किए हैं बच्चों से, मैं ये पूछ रहा हूँ कि या हमें खुद बनाने पड़ेंगे नोट्स? नहीं देखो, पिछली में तो मैं जितना बोर्ड वर्क करते थे वो सब अटैचमेंट में डाल देते थे, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये कंप्लेन थे जी सर आइदर द हैंड राइटिंग और आइदर जी सर बहुत लेजिबल नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, बोर्ड राइटिंग से वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर पीएनजी में चले जाते हैं जब मैंने सेव करता हूँ, मतलब बोर्ड वर्क को। और दूसरी बात, ये बोर्ड वर्क को दिखाएंगे छोटा, लेकिन यू कैन एक्सपांड इट, ये प्रोविजन है। क्या ना, मैंने खुद ही चेक करके देखा, क्लियर दिखाई दे रहा। बट मेरे को लगता है जो स्टूडेंट से मोबाइल से करते हैं हो सकता है उसके लिए प्रॉब्लम है, जो लैपटॉप किंवा डेस्कटॉप में करते हैं उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसे नोट तो मैं डाल देता हूँ उसमें, ठीक है। ओके सर। और दूसरी बात, लेक्चर के समय तुम लोग भी जैसे फिजिकल क्लास में होते हैं ना, हम लोग पेपर पेंसिल लेके बैठते हो, कुछ चीज नोट करते हो, ये भी ऐसे करो। एक तो रिकॉर्डिंग वाला काम तुम्हारा, इसी में तो बहुत फायदा है तुम लोगों का। एक रिकॉर्डिंग, कुछ चीज सुना नहीं तो और रिकॉर्डिंग वाला सुनो तो और तुम्हारा समझ में आएंगे, जो चीज मिस कर गया और मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा, बोर्ड वर्क भी आपके पास मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ लिखो तो कुछ यदि पेपर वर्क भी उसी समय भी, मतलब जैसे क्या ना नोट लिखना जिसको कहते हैं, वो भी लिखो तो इसमें क्या होगा ना, तुम्हारा एकदम अंदर में इसका आ जाएंगे, समझ गए। और अदरवाइज नहीं करके जैसे क्या ना गप सुन रहे हो इसका, है माइंड भी इधर उधर कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, जैसे ये बंद हो जाएंगे तुम्हारा मन से भी ये गायब हो जाएंगे, कुछ रहेगा थोड़ी हो। क्यों ना, सिर्फ एक ही केमिस्ट्री क्लासेस थोड़ी है, तुम लोग को कितनी सारे क्लासेस करना पड़ता है। क्यों? नॉट ओनली लेक्चर क्लास, प्रैक्टिकल है, ट्यूटोरियल है, इसके अलावा भी तुम्हारा असाइनमेंट है, इसके अलावा तुम्हारा खुद का कुछ काम है। क्यों? तो इसीलिए प्रैक्टिस रेगुलर रखो, जैसे फिजिकल फॉर्म में जैसे करते हो, ठीक है। तो here the medium is a little bit different due to this situation, है ना।
but you should make some coordination between these two. ठीक है? Then you will get the good result. और कुछ बताओ? बोलो, तुम लोग कितने स्टूडेंट्स हो? 101? 104 Yes, sir. बहुत स्टूडेंट? No, sir, it's 114. 113. अच्छा 113, तो 101 अटेंडेंस है आज। चलो अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लिए। 113। ये कौन सेक्शन है? ग्रुप डी। डी ग्रुप है सर, डी ग्रुप। अच्छा ठीक। You are not audible. Sir. बोलो, अरे बोलो भाई, सुनाई नहीं देते, कुछ बोले हो। I was saying you was not audible when. अभी भी ऑडिबल नहीं है? कैसे? मैं तो पंखा बंद कर दिए। Now it's not. Yes, मैं देखो गर्मी में पढ़ा रहे हो तुम लोगों का, तुम बोला ऑडिबल नहीं है, तो मैं और क्या कर सकते? सर वो आप बोल नहीं रहे थे ना, तो उसको लगा कि आप ओह audible। अच्छा। ये गर्मी लग रहा है सर, पंखा ऑन कर लीजिए सर। कर लेंगे। चलो देखो, अब तुम लोग को और कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज लेक्चर क्लास इज ओवर, यू कैन लीव। और यदि कोई पूछना हो तो पूछो, मैं तो बैठा ही हूँ। सर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री भी जेई वाला केमिस्ट्री जैसा ही होगा, याद करने वाला। हाँ, एक सेम। यहाँ पे समथिंग वी हैव एडेड, द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स क्या है ना, ये जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये तुम्हारा इंजीनियरिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, दैट नॉलेज को। ठीक, हाउ दिस नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विल एनरिच योर इंजीनियरिंग प्रोफेशन। ओनली ये चीज पर्पस है बेसिक के साथ। जनरली बेसिक यदि क्लियर नहीं होता तो उसको अप्लाई करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। ठीक है, Sir. Yes, sir. चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा है।